السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 90 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کراچی کے پوش علاقے کی ایک کئی منزلہ پرتعش بلڈنگ تھی۔ باہر سے شیشے کی اونچی عمارت تھی، اندر داخل ہوتے ہی لابی میں مرمر کے فرش، سنہری فانوس ریسپشن، ڈریسنگ اور بڑی بڑی ڈیجیٹل سکرینز پر چلتی ہوئی فیشن شوٹس کی ویڈیوز۔ بلڈنگ کے اوپر کمپنی کا نام نیون لائٹس میں جگمگا رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اس بلڈنگ کی شان و شوکت دیکھ کر متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے نقوش میں کچھ عجب سا تھا، کچھ ایسا کہ غور سے دیکھ لو تو شیشوں سے بنی یہ عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی پر معمور گارڈز سے اس نے کچھ لفظ کہے، فقط کچھ لفظ۔ اگر میں آج تمہارے آنر سے ملے پکڑ چلا گیا تو وہ راز نہیں جان سکے گا جو وہ یقیناً جاننا چاہے گا۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا۔ وہ گارڈ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہاں ہزاروں لوگ روز آتے تھے، کوئی اپنی قسمت آزمانے آتا تھا، کوئی رنگین روشنیوں کی چکا چوند سے متاثر ہوتے آتا تھا۔ خوبصورت چہروں کو اندر جانے کے لیے کسی نام سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک اس انسان کے اندر جانے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ براؤن آنکھوں میں درد کی لہر بھی تھی۔ اپنی پہچان بنانا آسان تھا مگر اپنی پہچان بنانا مشکل تھا۔ اس نے کبھی حلال حرام میں سیاہ کاری نہیں کی تھی۔ اس کے اعمال سیاہ ہو سکتے تھے مگر اس کے حلق میں اترنے والی ایک بوند تک حرام نہ تھی۔ مگر دنیا کے طعنے تصحیف نے اسے حرامی ہونے کا خطاب دے دیا تھا۔ اس لیے تو وہ اپنی دہشت کی چھاپ لوگوں پر ایسے چھوڑتا تھا کہ کوئی اس کے ماضی کو کھنگالنے کی ہمت نہ کرتا۔ اس کے سامنے وہ ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے سے کیا کچھ کہا جاتا ہوگا۔ وہ رکا تھا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ دنیا تو وقت کے بادشاہ کے پیچھے بھی بات کرتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر پیٹھ پیچھے وہ ایک ناجائز اولاد تھا۔ Who cares؟ یہ لائن خود کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک بہترین مشق ہے۔ وہ دن بھی میں 1000 بار تو دہراتا۔ وہ سر چھٹک کر آگے بڑھتا رہا۔ چمچماتے شیشے جیسے فرش جس میں سیاہ ریا کار چہرے پر بھی چمکتے دکھائی دیتے۔ وہ کانچ جیسے فلور پر آگے بڑھتا رہا۔ ریسپشن پر بیٹھی خوبصورت لڑکی اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ اس کی پرسنالٹی میں کچھ ایسا تھا کہ وہ لڑکی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، یا پھر اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا وہ اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ وہ پرنس نہیں تھا مگر لگتا تو تھا۔ مجھے اشیر ملک سے ملنا ہے۔ دو ٹوک لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا۔ اپوائنٹمنٹ ہے سر آپ کی؟ نہیں سوری سر، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ لڑکی اس سے کافی امپریس تھی مگر اسے اپنی جاب بھی بہت عزیز تھی۔ میرا نام التمش ہے۔ وہ آج اپنے نام کے ساتھ خان نہیں لگا سکا تھا، حالانکہ اسے اپنا بھرپور نام بہت پیارا تھا، کسی متاح کی طرح۔ متاع حیات، سوری سر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ میرا پورا نام جاننا چاہیں گی؟ وہ ریسپشن ڈیسک پر ہاتھ جمائے آگے کو ہوا۔ التمش اشیر ملک، یہ وہ سیاہ پہچان تھی جسے بتاتے التمش خان کی زبان میں چھالے پڑ گئے تھے، رگیں کٹنے لگی تھیں، دل میں درد ہوا الگ سے۔ وہ لڑکی منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی شال گردن سے جھٹکتے اس عالی شان آفس کی طرف بڑھ گیا تھا جو اس کے لیے کسی پاتال جیسا تھا۔ وہ اس پاتال کی طرف خود بڑھ رہا تھا۔ وہ آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بے حد پرتعش آفس، ایک ایئر کنڈیشنر خوشبو کا جھونکا اس کی سانسوں میں زہر بن کر اترا۔ اسے چاروں طرف بدبو کے بھبوکے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ بدبو شاید سامنے بیٹھے انسان سے آ رہی تھی۔ عالیشان کرسی پر کم و بیش 10 لاکھ کا گرے 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھ میں کروڑوں روپے کی مالیت کی گھڑی پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں سگار تھا، سرمئی قلمے، باقی بال سیاہ۔ اس انسان کی پرسنالٹی بے حد شاندار تھی، کم و بیش سامنے کھڑے انسان کی طرح۔ فرق صرف یہ تھا کہ سامنے کھڑے انسان کے جسم پر عام لباس تھا جو چند ہزار کا بھی نہیں تھا۔
ना इसने कोई और कीमती चीज़ पहन रखी थी, इसके पास सबसे कीमती चीज़ इसकी खुददारी थी। तभी तो वो झोंपड़े में ही रहकर पुरसुकून था, मगर सामने बैठा इंसान पुरसुकून नहीं लगता था। इतना कुछ होने के बाद भी वो खाली हाथ तही दमाग था। क्या वो गासिब था? गासिब क्या होता है? कौन होता है जो किसी का हक मार दे, जो किसी की पहचान इससे छीन दे, इसे तबाह बर्बाद कर दे? इसके लिए दुनिया गाली बनाते। वो गासिब भी नहीं रहता, वो गारत कर वो गारतगर बन जाता है। सामने बैठा अशीर मलिक सब कुछ हो सकता था, सिर्फ इंसान नहीं हो सकता था। वो बंदरों को ना सख्त पसंद था। अशीर मलिक अपने सामने खड़े इंसान को अचंभे से देख रहा था। तुम जानते हो मेरे पास आने के लिए कितने लोग बरसों लाइन में लगे रहते हैं, और तुम बगैर इजाजत के सीधे मेरे कमरे में आ गए। अशीर मलिक ने सिगार एश ट्रे में मसला। सामने खड़े इंसान से कोई ना बेताल्लुक महसूस हुआ। कुछ महसूस हुआ जो दिल को गर्मा कर स्याह कर गया था। मगर क्या? मैंने अभी इस मौके का बरसों इंतज़ार किया है। इतने तवील इंतज़ार के बाद कभी भी तुम्हारे रूबरू नहीं आना चाहता था। कमरे की ठंडक और नर्म खुशबू में अल्तमिश की भारी आवाज़ गूंजी थी। क्यों, क्या तुमने मेरा कुछ चुराया है? जब मेरे सामने आने से डरते हो? या फिर अशीर मलिक एक ऐसा पुरस्कार पुरअसर ताकतवर नाम है जो तुम जैसों को मेरे सामने खड़े होने की भी इजाजत नहीं देता? अशीर मलिक का लहजा चुभता हुआ था। बहरहाल सामने खड़े इंसान से कोई भी ताल्लुक आशनाई महसूस हुई हो, मगर इसका लिबास इतना गैर मामूली था। अशीर मलिक के चेहरे पर नागवारी की लहर दौड़ा गया था। इसे मामूली और गरीब लोगों से नफरत थी। मेरे लिए अशीर मलिक एक गंदी गाली है, एक घिनौना चेहरा जिसे देखते ही स्याहियां मुकद्दर बन जाएं। आज तुम्हें देखकर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जहन्नुम का सबसे निचला गड्ढा क्यों बनाया गया है। आशिर मलिक कुछ बोल ना सका। इसके चेहरे पर गजब गैसो गजब की परछाइयां छा गई थी। क्यों? पता नहीं इसने क्यों कहा, मगर वो जानना चाहता था कि जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में तुम जैसे शर्फा का अलग ही मकाम होगा। क्यों तुम लोग इतने शरीफ हो, इतने पाकबाज कि कोई दूसरा तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगा? जहन्नुम के भी दर्जे हैं, सबका एक लेवल है। सब सबसे निचला गड्ढा तुम जैसे अमर का है, और बाकी सब इससे ऊपर। दुनिया में तुम्हारे इर्द गिर्द कंधे से कंधा मिलाकर रहने पर फख्र करते हैं। वो भी जहन्नुम में तुमसे दूर रहना चाहेंगे। कहीं तुम्हारी बदकारियों की तपिश इनका भी मुकद्दर न बन जाए। शट अप, डोंट यू डेयर! आशीर मलिक चिल्लाया। जो इंसान कारी करे, जो शराब पिए, स्मगलिंग करे, जो जुआबाज हो, जो इतने बड़े अंपायर का मालिक हो, मगर सब हराम का हो। बकवास बंद करो! आशीर मलिक गुस्से से हाँफने लगा। इतनी हरामकारियां बदकारियां की हों, इसे खुद भी पता न हो कि इसके बदन पर पहना सूट भी हराम का है या हलाल कमाई का। साफ पानी में चुटकी भर भी गलाजत डाल दी जाए तो वो पानी गलाजत बन जाता है। हलक में एक लुक्मा हराम का उतरे और 10 लुक्मे हलाल के, इंसान इन्हें लुक्मों को खाने का आदी हो जाता है जो हराम होते हैं। बदी नेकी को मिटा देती है, शर खैर को खा जाता है। तुम्हारे खून में सिर्फ हराम कारी थी, इसलिए तुमने वही किया जो तुमसे तुम्हारे पेट में उतरे लुक्मों ने करवाया। बकवास बंद करो वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा। अशीर मलिक के मुंह से कफ उड़ाने लगा। तुम इतने गलीज, इतने मकरू हो। तुम्हें हलाल से इतनी नफरत थी कि तुमने हलाल को भी हराम कर दिया। अल्तमिश का तनफुस फूलने लगा। क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं आया था, या तुम्हारे कई बात थे? बकवास बंद करो! अशीर मलिक ने टेबल पर कीमती शोपीस उठाते अल्तमिश को मारा। शोपीस अल्तमिश की पेशानी पर लगा। खून की धार इसकी पेशानी से बहने लगी। अल्तमिश टेबल को जकड़े खड़ा रहा, दूर नहीं हुआ था। खून का रंग सबका सुर्ख होता है, मगर अल्तमिश अपने खून की पहचान कर लेता है। अफसोस तुम एक मर्द भी नहीं हो। खून के कतरे टेबल पर पड़े कीमती ड्राफ्ट को सुर्ख करते जा रहे थे। अशीर मलिक बिना सांस लिए इस खून को देख रहा था।
اسے اپنے قیمتی ڈرافٹ کی فکر نہیں تھی. اسے یہ بہتا خون تکلیف دے رہا تھا. مجھے اپنے خون سے نفرت ہے، مجھے اپنے خون سے گھن آتی ہے. اگر خون ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، میں کسی بھی انسان سے اپنا خون بدل لیتا. سڑک پر لیٹے کسی شرابی کے خون کے ساتھ، کسی فقیر کے ساتھ، کسی ایسے انسان کے ساتھ جس پر دنیا تھو تھو کرتی ہو. کاش میرے جسم میں بھی صرف میرا خون نہ ہوتا. التمش اپنے بہتے خون پر نثریں جمائے بول رہا تھا. اشیر ملک دم سادھے اسے دیکھ رہا تھا. کون ہو تم؟ میری پہچان میرے لیے گالی ہے. ایسے لو اپنا نام. سر اٹھاتے کرب سے پوچھا. التمش نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکالتے اشیر ملک کی طرف بڑھایا. التمش کرسی پر ٹھہسا کیا تھا. وہ اپنی چادر سے اپنا خون صاف کرنے لگا. کاش اس کی رگوں میں دوڑتا خون اشیر ملک کا نہ ہوتا. کاش وہ جائز ہی ہوتا. کبھی کسی اپنے جائز کے ہونے کا اتنا سوگ نہیں منایا تھا جتنا آج اس نے منایا تھا. ڈی این اے رپورٹ دیکھتے اشیر ملک کی رنگت متغیر ہوئی تھی، سیاہ راکھ جیسی. تم بہت بڑے آدمی ہو، اتنے بڑے کہ تمہارے چند بالوں کے عوض میں نے اپنی تمام جمع پونجی لگا دی. میں نے تا عمر جتنا پیسہ کمایا اتنے پیسوں میں تمہارے چند بال خریدے. التمش سیٹ سے ٹیک لگائے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا. خون بہتا ہی جا رہا تھا. تم امرا غریب ہو کے یا ہوس پرست؟ میں آج تک سمجھ نہیں پایا امراء کا غربت سے کیا بھلا تعلق. مگر تمہارے گرد رہنے والی کسی شریف امراء ہی لاکھوں روپے کے عوض تمہارے بال مجھے دیے. اب یہ مت پوچھنا کتنے لاکھ. مجھ جیسے کے لیے وہ بہت زیادہ تھے. تمہارے لیے وہ 1 ٹکا بھی نہیں ہوں گے. مگر اسی ٹکے کے لیے تمہارے قریبی دوست نے اپنا ایمان بیچ دیا. وہ تلخی سے ہنس دیا. اشیر ملک گنگ کھڑا تھا. اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. ایک بات بتاؤ، شاہویر ملک کو اپنا خون کیسے مانا؟ میری ماں کے ہی بطن سے اس نے بھی جنم لیا تھا. آسمان سے پتھروں کا تھال جیسے اشیر پر لڑھک آیا ہو. جب شاہویر ملک حلال کا تھا میں حرام کیسے ہوا؟ اپنا خون شال سے پونچھتے پوچھا. تمہارا باطن سیاہ تھا اور تم نے پاک عورت کی قسمت تاریک کر دی. تم غیر عورت سے تعلق رکھو تو شوق محبت ضرورت سب جائز. تمہارے نام ساتھ چڑی عورت کسی سے بات کر لے تو اس کے بطن میں پرورش پانے والے خون میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. کیا میری ماں کو کسی کے بستر میں دیکھا تھا؟ آگاہی درد دیتی ہے، تھپڑ مارتی ہے، جوتے مارتی ہے. اشیر ملک سے کوئی پوچھتا کتنے جوتے کتنے تھپڑ جسم پر لگے، وہ گنتی بھول جاتا ہے. اسے اپنے وجود پر صرف بے درد ضربیں محسوس ہو رہی تھی. کسی مرد کے ساتھ ایک گاڑی سے نکلنے پر عورت بدکار نہیں ہو جاتی. اسی طرح تو ہزاروں عورتیں سفر کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں. اگر وہ خیبر پختونخوا سے ٹیکسی بک کروا کر آ گئی تو کیا ہو گیا؟ میری ماں بدکار ہو گئی؟ ٹیکسی؟ اشیر ملک نے خود کو پشتی کی انتہا پر گرتا محسوس کیا. بغیر پوچھے بغیر کچھ جانے طلاق دے دی میری مورے کو. اس کے پیٹ میں بچہ بھی تمہارا ناجائز لگا. التمش نے ٹیبل پر بازو رکھتے اشیر ملک کو دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں تھا. تم خود ایسے تھے جیسے تم نے میری مورے کے بارے میں سوچا. تم نے اتنی بدکاریاں کی تھیں کہ تمہیں ہر کسی کے چہرے پر اپنا عکس نظر آتا ہے. تمہارا دل اتنا مردہ تھا کہ تمہیں ہر کوئی مردار نظر آتا ہے. تم میں وفا نہیں تھی. تمہیں ہر دوسرا چہرہ بے وفا نظر آتا ہے. اشیر ملک زمین پر گر چکا تھا. ٹیبل کے دوسرے پار زمین پر وہ لٹی پٹی حالت میں بیٹھا تھا. تم دوسروں کی عورت کو خریدتے کبھی اپنے دوست کی بیوی کو تم ہیرے کا ہار دے کر تم اس کا جسم خرید لیتے. تم کبھی اپنی کمپنی کی ماڈل کو خرید سکتے تھے. تم نے جس عورت کو خریدا وہ عورت بک گئی. اس لیے تمہیں ہر عورت خریدار لگتی ہے، بکاؤ مال لگتی ہے. جس طرح پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اس طرح ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی. مشرقی عورت تو اس سے وفا بھی کرتی ہے جس سے نفرت کرتی ہے. وفائیں تو عورت کی مشروط ہوتی ہیں. صرف لفظ بن کے عورت کے گرد لکیر کھینچا ہے.
औरत लकीर के गिर्द ए, एरा खींचती है, जिसके अंदर सिर्फ वफा होती है, वो दायरे से कभी नहीं निकलती। अल्तमिश को टेबल के इस पार अशीर मलिक जमीन पर बैठा नजर आया, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वादा किया था अपनी मोरे से, एक दिन अपनी पहचान तुम्हारे सामने साबित करूंगा। 27 साल लग गए मुझे जलते तड़पते। आज पहली और आखिरी बार खुद को अल्तमिश अशीर मलिक कहा है। यकीन मानो, इससे बढ़कर मेरे लिए बड़ी जिल्लत कोई नहीं कि मैं तुम्हारे नाम से पहचाना जाऊं। वो उठ खड़ा हुआ। ब्राउन चादर खून से भरी थी। दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे वो पलटा था। मैं और शाहवीर मलिक सिर्फ रशीना खान के बेटे हैं। इसी तरह पाक और साफ, तभी तो तुम्हारे साथ ना शाहवीर है और ना कभी अल्तमिश खानजादा होगा। ये बड़ी बड़ी इमारतें तुम्हें मुबारक हो सके तो कब्र में साथ लेके जाना। क्या पता तुम्हें बेहतर ट्रीट किया जाए। वो तनफ्फुर से कहता चला गया था। इस्लामाबाद की सड़कें खामोश और पुरसकून थी, मगर शाएं शाएं हवाएं ये सुकून चीर देती। मोटे मोटे बारिश के कतरे वजूद पर गिरते तो बदन चीरते महसूस होते। वो बुरी तरह उछलकर पीछे हटी। सफेद गाड़ी ने इसके पास ब्रेक मारी थी। एक लम्हे की देर होती इसका पाँव टायर्स के नीचे आकर कुचला जाता। सफेद गाड़ी से हंसते हुए एक मर्द निकला। मक्कार मगर दिल फरेब हंसी। तुम डरती हुई बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी आंखों में मैं अपनी मौत देखने की ख्वाहिश लिए इसकी दुनिया से ही कहीं न चला जाऊं। ब्राउन शलवार कमीज पर सफेद मर्दाना शॉल लिए तबरेज खान जनीशा के करीब हुआ। जनीशा पीछे होते गाड़ी के साथ जा लगी। क्यों डर रही हो? रिश्ते में तुम्हारा सुसर हूं। मुझे तुम में से कोई दिलचस्पी नहीं। कोई और ये बकवास करता, मैं इसे बेशर्मी के ताने मारती, इसे गलीज कहती कि वो अपनी बेटी जैसी बहू से इस तरह की बातें कर रहा है, मगर तुम्हारे लिए तो सब जायज है। तुम बेशर्म नहीं बेगैरत हो। बेगैरत भी हो, वो भी आला दर्जे के। जनीशा ने सारे लफ्जों में से बेटी पर खास तौर पर जोर दिया था। ना बेटी जैसी हो ना बेटी हो तुम, बल्कि तुम्हें तो मैं अपनी बहू भी नहीं मानता। तबरेज खान का लहजा सपाट हुआ था। लफ्ज बेटी इसे पसंद नहीं आया था। जनीशा इसके तासुरात देखते मुस्कुराई थी। तबरेज खान भी अपनी कमजोरियां इसे देता जा रहा था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है ये अहम नहीं। अहम ये है कि तुम यहाँ क्यों आई। तबरेज ने जवाबन सवाल किया। तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम मेरे लाला को नुकसान पहुंचा दोगे। तुम जरिक को सब कुछ बता दोगे। मजबूरन मुझे तुम जैसे दरिंदे से मिलने आना पड़ा। जनीशा की बात पर तबरेज की हंसी गूंजी थी। इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम मुझसे डरती हो। मैं तुमसे नहीं। मेरे पास तुम्हारी कमजोरियां हैं। तुम्हारे पास मेरी कोई कमजोरी नहीं। जिसको प्यादा बनाया था तुम तो इसी प्यादे की असीर हो गई। अब वो प्यादा न रहा, वो कीमती हो गया। बेहद कीमती। मेरे लिए और तुम्हारे लिए जरे के एक बराबर है। अब तुम्हारे पास कौन सी शतरंज है? कौन सी चाल है? अगर ताकत तुम्हारे पास है, ताकत मेरे पास भी है। तबरेज अपने पीछे खड़े गार्ड को देखते शातिराना मुस्कुराया, जिसके हाथ में पिस्टल थी। जनीशा से थोड़े फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें जनीशा के 2 आदमी थे। आसमान के पास दौलत है, मेरे साथ हुकूमत। तबरेज खान अब पार्लियामेंट का अरकान था। आलियान खान जावियार का नाम ही मेरे लिए काफ़ी है। तबरेज के लहजे में गरूर ताकत का नशा था। जहाँ तक बात है सबूतों की, तो किसी के पास एक सबूत नहीं। 17 साल पहले क्या हुआ कोई नहीं जानता। डेड बॉडीज को इतनी बेदर्दी से जलाया था तुम सोच भी नहीं सकती। डीएनए के लिए दांत तक नहीं बचे थे। जनीशा सीने पर हाथ बांधे तबरेज को देख रही थी। चेहरा सुर्ख था, मगर वो सब किए हुए थी। अब तुम क्या करोगी? मुझे मारोगी, मगर कैसे? कोई प्लान नहीं तुम्हारे पास, तुम सिर्फ बातें कर सकती हो। आयुष्मान शाह भी कुछ नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? वो जनीशा की तरफ झुकते इसकी आंखों में देखने लगा। आयुष्मान शाह के पास अगर कुछ बचा है, वो हो तुम। वो तुम्हें कभी खोना नहीं चाहेगा। तुम मेरी जमीन, मेरी जगह, मेरी हवेली में हो।
मेरी बेटी की बीवी। अब तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें हर बात के लिए जवाब देना होगा। कत्ल होते हैं, तफ्तीश भी होती है। मुझ जैसे शिकारी के कत्ल होने पर जंगल के सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। कत्ल करने वाले को दाद दी जाएगी। सुन रही हो? कत्ल करने वाले को दाद दी जाएगी। दाद लेने के लिए कातिल का होना जरूरी होगा। तबरेज खान मक्कारी से मुस्कुराया। यकदम तबरेज की गर्दन को किसी तेज धार आले ने छुआ। तबरेज खान की गर्दन से खून बहने लगा। तबरेज खान चीखते हुए पीछे हुआ। तबरेज खान का गार्ड सनीशा की तरफ बढ़ा। तबरेज खान के इशारे पर वो पीछे हो गया था। सनीशा के गार्ड गाड़ी से निकल आए थे। सनीशा ने हाथ में पकड़ी कांच का नुकीला टुकड़ा नीचे फेंका था। तुम भड़के मार रहे थे। मैं तुम्हें स्टडी कर रही थी। जनीशा के लफ्जों पर तबरेज बिलबिलाया था। गर्दन पर रखा हाथ मजीद रंगीन हुआ। और तुम शिकारी नहीं, फासिक हो। जानते हो फासिक किसे कहते हैं? ऐसा शख्स जो अल्लाह के अहकाम से निकल जाए, जो बदकार गुनाहों में डूबा हुआ हो। यानी वो शख्स जो फर्ज, इबादत और शरीयत के अहकाम छोड़ दे और गुनाहों पर डट जाए, फासिक कहा जाता है। अब की बार तबरेज को चाबुक लगा। तुम्हारी लाश सबसे पहले जंगल के जानवर नोचेंगे, तुम्हें घसीटेंगे, तुम्हें अपनी खुराक बनाएंगे। हाँ, मुर्दार तुम्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि मुर्दार नहीं खाते। जनीशा के लफ्ज तबरेज का रंग स्याह कर चुके थे। मुझे कमजोर समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जरिक मेरे लिए जुनून से बढ़कर नहीं हो सकता, ना वो मेरे और तुम्हारे लिए बराबर है। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई। तुम्हें मौत ना देकर गलती की मैंने। तुम्हें खबरदार करके गलती की। तुम्हें अपनी कमजोरियां देकर गलती की। मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। ऐसी गलती का मैं असाला करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जनीशा ने ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए तब कहा। तबरेज खान साकत हुआ। दर्द गर्दन से वजूद में उतरा। तुम्हें जिंदा छोड़ा। मुझे इस दूसरे नकाबपोश का नाम जानना था। तुम्हें मैं कत्ल करूंगी, आलियान खान को तुम कत्ल करोगे, मगर इससे पहले तुम्हें ऐसी जिल्लत दूंगी तुम किसी के सामने नजर नहीं उठा सकोगे। जनीशा धमकी देते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी कि इसे जोरदार चक्कर आया। वो अपना सर दोनों हाथों में थाम गई थी। सरिक को तुम मार दोगी? क्या इस बच्चे को भी मार दोगी? तबरेज के सवाल पर जनीशा के ने मुतगैर रंगत के साथ मुड़ते हुए से देखा। मैंने तुम्हारी माँ को मारा, वो पेट से थी। मैंने तुम्हारे बाप की नस्ल खत्म की, तुम हमारी नस्ल को परवान चढ़ाओगी? बहुत अजीम औरत हो तुम। पोता चाहिए मुझे। तबरेज खान बड़ी फुर्सत से कमीनगी से मुस्कुराता चला गया। जनीशा ने आसमान की तरफ देखा। इसे बारिश के कतरे तेजाब महसूस हुए थे। रात का 1 बजा था। क्लिनिक बाहर से किसी पुरतइश अस्पताल जैसा लग रहा था। सफ़ेद मार्बल की चमकदार सीढ़ियाँ, शीशे के दरवाजे और रिसेप्शन पर नीम ख्वाबिदा स्टाफ। ये शहर के पोश तरीन इलाके का वो क्लिनिक था जहाँ हर मरीज का वक्त और सकूत लाखों में खरीदा जा सकता था। जनीशा के हाथ कांप रहे थे जब इसने अपने कीमती पर्स से चेक निकाला। लाखों रुपए की अमाउंट भरते इसकी आंखें धुंधला गई थी। वो कागज डॉक्टर के आगे रख चुकी थी जैसे अपनी मौत पर दस्तखत कर दिए हों। जनीशा के कदम लड़खड़ाने लगे। राहतारी में एंटीसेप्टिक की तेज बू फैली थी। दीवारों पर लगी रोशनियों का सफेदपन इसके अंदर अंधेरों को और गहरा कर रहा था। कमरे के अंदर बेड पर सफेद चादर बिछा था। मशीनों पर सब्ज बत्ती चमक रही थी। वहां पहुंचकर इसने आखिरी बार पलकें बंद की थी और बंद आंखों से पीछे को मुंह मुस्कुराया था। सब्ज आंखें हंसता हुआ वो दिल का हजन नए सिरे से ताज़ा हुआ। कर्ब से सीने पर बिरछियां चली थी। वो सख्ती से आंखें मीच गई। वो हंस रहा था। वो अभी भी हंस रहा था। जब वो हंसता था तो दुनिया मुस्कुराने लगती थी। दिल थम जाता था। वो जनीशा का भी इस लम्हे दिल थम गया था। इस्लामाबाद के होटल लॉबी में वो टहलते हुए इसका इंतजार कर रहा था। स्याह ट्राउजर पर ग्रे हाई नेक पहने हुए इसकी सब्ज आंखों में इस तरह परेशानी थी। होटल का ये हिस्सा पुरसकून और खामोश था। आरामदाह सोफे रखे हुए थे मगर इस वक्त इधर कोई नहीं था। रिसेप्शन पर कुछ स्टाफ था जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। वो उंगलियां पेशानी पर रगड़ते हुए इधर उधर टहल रहा था। वो अचानक से कहाँ चली गई इसे कुछ खबर न थी। इसका फोन भी बंद आ रहा था। किसी बात पर वो बेहद गुस्से में थी और थोड़ी देर इससे स्पेस मांगी थी। बेहद बदतमीजी की इसने। और तब वो गुस्से से कमरे से निकल आया था। होटल लॉबी में बैठे सिगरेट पीता रहा। जब कमरे में गया तो वो वहां नहीं थी। 2 घंटे पहले वो लॉबी में बैठा जलता कुड़ता रहा।
اب آدھے گھنٹے بعد اس کی جان سولی پر لٹکی تھی. سر خانزادہ کی پریشانی اب غصے میں بدل رہی تھی. رات کے 2 بج رہے تھے اور اس کی بیوی کا کہیں نہیں پتا تھا. یکدم وہ اسے سامنے سے آتی دکھائی دی تھی. باٹم گرین ڈریس پر سیاہ چھوٹی سی شال سر پر لیے ہوئے. سیاہ شال بھیگی ہوئی تھی. ظریف خانزادہ اسے سخت تاثرات سے دیکھ رہا تھا. وہ اس کے قریب آ کر رکی. کہاں سے آ رہی ہوں؟ قتل کر کے، بے حد لاپرواہی سے جواب دیا. زینی بکواس کرنے کے بجائے سیدھا جواب دو. سیدھا ہی جواب دے رہی ہوں. کیا تم میں نہیں لگتا میں قتل کر سکتی ہوں؟ میری آنکھوں میں دیکھو. خون نظر آئے گا تمہیں. وہ ظریف کے قریب ہوئی تھی. وہ ڈپریس نظر آ رہی تھی. بے حد ڈپریسڈ. تنفس پھول رہا تھا. رنگت سرخ تھی. بے تحاشا سر. کس کا قتل کر کے آئی ہو؟ سنیشا کی اضطرابی حالت دیکھتے وہ اسے صرف جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اگر کہوں تمہارا قتل تو وہ نم سا مسکرائی. میں تو صحیح سلامت ہوں. ظریف نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا. اس کی آنکھوں کو نرمی سے چوما. وہ کسی ٹراما میں لگتی تھی. اگر اس کی بیوی کے لیے کچھ ٹراما تھا تو اس سے نکلنا تھا. کبھی کبھی کسی کے اعتبار کا قتل کیا جاتا ہے. اس سے بڑا قتل کوئی نہیں ہوتا. زنیشا کو اس انسان کی نرمی کاٹ کھانے کو دوڑی تھی. کاش وہ رات کے اس پہر باہر سے آنے پر ایک تھپڑ کھینچ کر دے مارتا. اس کے پاس الزام دینے کی وجوہات ہوتی. خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ہوتی. فی الوقت تو تمہاری آنکھیں میرا قتل کر رہی ہیں. مت دیکھو ایسے. مجھے خود کا بھی رہنے نہیں دوں گی. تم مجھ پر شک کر رہے ہو نا؟ اس لیے میرا ادھر انتظار کر رہے تھے. تمہاری سوچ بہت گھٹیا ہے. مجھے اچھی طرح پتا ہے. وہ جان بوجھ کر الزام تراشی پر اتر آئی تھی. وہ صرف ظریف کو غصہ دلانا چاہتی تھی. وہ اس پر ہاتھ اٹھائے اسے مارے تاکہ اسے برا انسان سمجھنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایک وجہ ہو. میں تم پر کبھی شک نہیں کر سکتا زینی. یہاں کھڑے ہو کر تمہارا انتظار اس لیے کر رہا تھا کیونکہ تمہاری فکر ہو رہی تھی. محبت کرتا ہوں. پرواہ کرتا ہوں. سرک نے اسے اپنی سینے میں قید کرنا چاہا. جھوٹ جھوٹ سرک. تم یہاں کے مردوں کی طرح اوور پوزیسو ہو. تم عورت کو صرف اپنی ملکیت سمجھتے ہو. اس سے دور ہوتی رہی تھی. شرابی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جو چیز ملکیت ہو وہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. زینی کسی غیر کی چیز کے لیے تو انسان پوزیسو نہیں ہوتا. اپنی بیوی کو لے کر میں پوزیسو کم اور اوور پروٹیکٹیو زیادہ ہوں. بے حد رسانیت سے کہا. آئی ہیٹ یو. وہ اس کے سینے سے لگی پھٹ پھٹ کر رو دی تھی. آئی لو یو. وہ اس کے گرد نرم حصار باندھ گیا تھا. براؤن شلوار قمیض پر سفید شال کندھوں پر ڈالے وہ مٹی کے صحن میں کھڑا مضطرب سا لگتا تھا. گیلی مٹی سے اس کے جوتوں پر مٹی لگ چکی تھی. مہینہ ہونے کو آیا تھا. باسین گھر نہیں آیا تھا. مسجد میں اسے سوتے ہوئے دیکھا تھا. اسے دیکھتے ہی اس نے منہ پھیر لیا تھا. 2 دن پہلے اسے پتھر توڑتے دیکھا تھا. اسے مزدوروں کی طرح کام کرتے دیکھ کے التمش کا کلیجہ منہ کو آیا تھا. بارش ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی. گھروں کی تعمیر کا کام رک چکا تھا. پتہ نہیں اب کیا کر رہا ہوگا. کہاں سے کھانا کھاتا ہوگا. تو انگلیوں کو جوڑے پیشانی پر مسل رہا تھا. اسے زمر خان آتے دکھائی دی. سرمئی فراک میں اسی رنگ کی شال اوڑھے. کلفٹن کہیں دور جا سوئی تھی. دل چٹکیاں بھرتے ہوئے اترانے لگا. یہ عورت اس کی تھی. سرمئی آنکھوں والی عورت صرف اس کی تھی. جس کے نام ساری وفائیں دل کرنے کو دل چاہتا تھا. جس کے لیے قتل ہونے کو دل چاہتا تھا اور قتل کرنے کو بھی. وہ پہلے ہپنوٹائز ہوا پھر ہنسا. زمر واش روم کے دروازے پر کھڑی جھنجھلا کر رہ گئی تھی. جوتے کیچڑ سے بھر چکے تھے اور پانی ٹھنڈا تھا. وہ اس برف جیسے پانی سے اپنے پیر نہیں دھو سکتی تھی. اتنی بھی غریبی کیا کہ واش روم میں ایک سلیپر نہیں رکھ سکتا. زمر نے جھنجھلاتے پوری قوت لگاتے دروازہ بند کیا. واش روم سے آئی تو التمش اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گیا. چھوڑو مجھے. وہ غصے سے جھٹپٹائی. کب تک غصہ کریں گی؟ کب تک ناراض رہیں گی؟ اب تو معاف کر دے. راتیں سونی کر دی ہیں میری. التمش نے اس کا چہرہ تھامے اس کے نگوش پر لب رکھے. تم نے میری زندگی سونی کر دی. چاند اپنی آنگن میں اتار دیا تو اس کی حفاظت نہ کر سکے. مجھے عیب نہیں پسند. دیکھو میں عیب دار ہو گئی. میں داغدار ہو گئی. زمر نے اپنی کلائی آگے کی. دودھیا کلائی پر جلے کا نشان تھا. کتنا ہی حصہ جل کر سیاہ تھا. التمش نگاہیں چرا گیا. زمر اس کے حصار سے نکلتی برآمدے کی طرف بڑھ گئی. وہ لب کاٹتے برآمدے میں پچھلی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی. پیر نیچے لٹکائے وہ اپنے کیچڑ لگے پیروں کو دیکھ رہی تھی. التمش اس کے جوتے پکڑے واش روم کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد آیا تو جوتے دھلے ہوئے تھے. جوتے زمر کے قدموں میں رکھے اس کے مٹی بھرے پاؤں اپنی شال سے صاف کیے. زمر اسے سانس روک کے دیکھ رہی تھی. نہ کوئی شکن نہ کوئی ناگواری نہ کوئی انا. وہ دوسروں کے سامنے کچھ اور اس کے سامنے کچھ اور. مختلف مرد. بالکل مختلف مرد. میری غلطی ہے. میں واش روم میں الگ سے سلیپرز رکھ دوں گا. واش روم کے بیت الخلاء
मर्द जिमर की भीगी आवाज पर। अल्तमिश ने सर उठाए से देखा। वो गीली आंखों से मुस्कुराते हुए से देख रही थी। जो आप कहें। वो भी मुस्कुराया। कब से इतने शरीफ हो गए? रोते हुए पूछा। जब से शौहर बना हो, सादगी से जवाब आया। शौहर बन के इंसान भी इतना नहीं बदलता। वो अब नाज से अदा से पूछ रही थी। आपका शौहर बनते इंसान बदल सकता है? जिसके पास आप हों वो इंसान खुद पर नाज़ा हो सकता है, मगरूर हो सकता है, झुक सकता है। आप औरत नहीं, एक सहर है, जादूगरनी है। मैं इतना बदबख्त नहीं हो सकता आपकी कदर न करूं। वो बोलता रहा। वो सुनती रही। पास रखी अंगीठी में रखे कोयलों की तड़तड़ाहट भी कुछ देर के लिए थम गई। वो इतना ही खूबसूरत बोलता था, रुआ रुआ, यहाँ तक कि कायनात का हर जर्रा समात बन जाता था। मेरी कुछ ख्वाहिशें थी। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ मांगा था, मिला कुछ नहीं। क्यों? अब कायनात सांस लेते जामिद सामिद हो गई। ऐसा मर्द पाकर कौन नाशुक्री करता है। अल्तमिश के दिल में दर्द उठा था तो आसमान भी जैसे इसकी नाकदरी पर रोया था। बारिश तेज हो चुकी थी। मैं सब कुछ दिलवाऊंगा, मैं हर जरूरत पूरी करूंगा, नजर झुकाते कहा, मगर लहजा मजबूत था। कैसे? अगर तुम्हारे पास पैसे होते मेरी बांसों की सर्जरी हो सकती थी। जिमर ने जैसे अल्तमिश के चेहरे पर चांटा दे मारा। इसकी गरीबी का, इसकी बेबसी का वो गर्दन न उठा सका था। बाबा से मैं अपना हक लूंगी। बात फिर वहां से आकर ठहर गई जहां पर हमेशा खत्म होती थी। बस एक लफ्ज और, बस एक लफ्ज और नहीं। बीवी है, बीवी बनकर रहे, सर पर ज्यादा ना चढ़े। इससे ज्यादा नखरे नहीं सहूंगा। वो दरिश्तगी से बोलते बरामदे अबूर करते गेट से बाहर निकल गया। जिमर जो कुछ देर इस मर्द की मोहब्बत पर नाज कर रही थी, अब वो मोहब्बत कर्ज लगी थी। वहां से वहां से इसे मोहब्बत कर्ज लगी थी। जब इंसान खुद बख्ती पर उतर आए तो किस्मत भी इसे बदबख्त समझने लगती है। वो बरामदे पर लटकी फटी हुई तरपाल को देखते रोना शुरू हो चुकी थी। क्या खुद के बारे में सोचना गलत था? क्या अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखना गलत था? तरपाल में हुए छेद इसके दिल पर भी छेद कर चुके थे। बरामदे की चारपाई पर लेटे हसन कर्ब में डूबे लगा। माथ में हिचकियां पड़ने लगी। वो अपने बाड़े में खड़े अपनी भैंस के आगे चारा डाल रहा था। सईद का इंतजार करते करते वो थकने लगा। इंतजार तवील हुआ, थकन असाबों में उतर आई। सईद को गए काफी देर हो गई थी। इसके हाथ अबासीन के लिए खाना भिजवाया था। या इलाही, इतनी तेज बारिश! वो बाहर की तरफ ही देखते बड़बड़ाए। सईद को देखते वो हक्का बक्का इसकी तरफ बढ़ा। जिसके सर से खून बह रहा था, उसके गिरेबान के बटन टूटे हुए थे। वो अपना बहता खून अपने बाजू से साफ करते रो रहा था। ये क्या हुआ? किसने किया? अब्बासीन ने मुझे बहुत मारा है। खाना उठाकर फेंक दिया। इसने मुझे गाली दी। मस्जिद में नमाज के लिए जमात खड़ी थी, इतना तमाशा किया इसने। नमाज के बाद बहुत से लोगों ने मुझे और अब्बासीन को मारा। वो रोते हुए बता रहा था। क्या? अल्तमिश के दिल को धक्का लगा। बहुत मारा है क्या इसे? अल्तमिश सईद की तरफ से रुख पलट गया था। हाँ, इसको मस्जिद से भी निकाल दिया। अच्छा, वो इस हरामी को निकाल दिया। ए, गाली नहीं। अल्तमिश सईद को गिरेबान से जकड़े दीवार के साथ लगा गया। इसके कदम जमीन की 1 फुट ऊपर उठ गए थे। सईद की हालत देखकर अल्तमिश ने इसे झटके से छोड़ा। सईद जमीन पर बैठा मजीद रोने लगा। अपनी मरहम पट्टी करो, 2 दिन आराम करो, वो कहता चला गया। वो सोफे पर लेटे सिगरेट फूंक रहा था। अबासीन को यहाँ के लोगों ने मारा, इसका सीना जल रहा था। वो दो भाई थे। वो कितना बदनसीब था, एक भी इसके साथ नहीं था। शाहवीर मलिक, वो अपने बालों में उंगलियां फेरते बड़बड़ाया। दिल में हो उठी थी, कोई ताल्लुक नहीं मेरा शाहवीर के साथ। जो ताल्लुक मेरे खून से जुड़ा हो वो गुमनाम ही अच्छा। सुलगता सिगरेट के अंदर इसे बुरी तरह सुलगा रहा था। अंगीठी कम है दम घोटने के लिए कि सिगरेट भी जलाकर बैठ जाया करो। जिमर ने नींद से भरी आंखें खोलती हल्की सी जर्द रोशनी में अल्तमिश को घूर कर देखा। आ जाए मेरे पास, न सिगरेट का धुआं होगा न अंगीठी की जरूरत रहेगी। वो आंखें मूंदे ही बोला, अपना हीटर अपने पास ही रखो। वो बड़बड़ाई, मेरा हीटर ठंडा ना हुआ तो सिगरेट यूं ही सारा रात जलता रहेगा। अच्छी बात है, वक्त से पहले ऊपर पहुंच जाओगे। और रजाई अपने ऊपर मुकम्मल उड़ गई थी। अपनी खुशनसीबी पर रश करने लगता ही हूँ कि आपकी बदजुबानी आड़े आ जाती है। अल्तमिश ने कलसते हुए कहा, मेरी तरह बदनसीबी पर रश कर लिया करो, कुछ आड़े नहीं आएगा। दो बदो जवाब आया तो अल्तमिश ने दांत खिचखिचाए थे। गर्दन मोड़े से देखा, वो रसाई के अंदर गुरूब थी। बदजुबान और शोहर को सताने वाली औरतें जहन्नुम में जलती हैं। ऊंची आवाज में इसे एहसास दिलाना चाहा, सिगरेट पीने वालों के लिए तो जन्नत बनी है, नशा करने वाले भी जहन्नुमी हैं।
अल्तमिश के तो सर पर लगी, पैरों पर पूछी। वो सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए चारपाई की तरफ बढ़ा, सिमर से रजाई खिसकाते और इसके ऊपर हावी हुआ था। क्या है? वो काट खाने को दौड़ी थी। जहन्नुम में तब जलता हूँ जब मुझे ऐसे सताती हैं। कितने दिन हो गए, कुछ एहसास है? शर्म है आपको? वो इसे मखमूर आंखों से देखते शिकायती अंदाज से पूछ रहा था। नहीं है शर्म, ना एहसास, हटो मुझसे परे। ज़िमर ने उसे गुस्से से घूरा। जब खूबसूरत औरत ना कहे इसका मतलब हाँ होता है। वो विवाह के उसके दिल के मकान पर लपक गया था। जब ज़िमर खान ना कहे तो ना ही होता है। ज़िमर ने पूरी कुव्वत से इसे खुद से दूर धकेला था। सुबह कह रही थी मैं वैसे भी खूबसूरत औरतों की बात कर रहा था, बदजुबान औरतों की नहीं। वो इसके पहलू में ही लेट गया था। सोफे पर जाकर लेटो जहाँ इतने दिन से थे। ज़िमर पूरी रज़ाई अपनी तरफ खींच गई थी। अच्छा, ये गुस्सा इसलिए है कि मैं इतने दिन आपसे दूर रहा, पहले क्यों नहीं बताया? वो ज़िमर से रज़ाई खिसकाते इसे अपने ऊपर कर गया था। ज़मर खान की जूती को भी परवाह नहीं, तुम जहाँ मर्ज़ी सो। रज़ाई फिर से खींच ली गई। जूती को ना सही, ज़मर खान को तो है। उसे बेबाकी से खुद के साथ लिपटा गया था। खुदा के लिए छोड़ो अल्तमिश, कितनी सर्दी है। ज़मर इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। गर्म ही तो करने लगा हूँ जान। लहजा मखमूर हुआ, अभी भी शौहर बनो ना। जैसे कुछ देर पहले मुझे बीवी होने का मकाम याद दिला रहे थे। अंदाज नरूठा और शिकायती था। इस बात को दिल से लगाए हुई हैं, जो इतनी मोहब्बत भरी बातें कहीं वो याद नहीं। गंभीर लहजे में क्या तेज था, अंदाज भी शिकायती था। मुझे बुरी बातें याद रहती हैं, इसलिए दूर हटो मुझसे। और उसकी गिरफ्त से निकलने की सही करते चिल्लाए इससे बाहर। अल्तमिश इसके चिल्लाने पर मजीद खुद पर काबू न रख सका। यही है तुम्हारी मोहब्बत, जो जरा जरा सी बात पर ऐसा जाहिर होती है। चीखो जितना चीख सकते हो। बीवी पर चीखना आता है तुम जैसे मर्दों को। सिमर की बात पर वो झंझलाते हुए से अपनी बाहों से आजाद कर लिया था। हाँ, आधी रात को आली जा को बीवी से चाकरी करवाना याद आ गया है। पागल कुत्ते ने कहा था मुझे आधी रात को जगाओगे और मैं खामोशी से लाट साहब को सहने लगूंगी। चीख चीख कर सह लो। वो इसकी बड़बड़ाहट पर कलस कर रह गया था। सिमर फिर से रजाई के अंदर कुरूप हो गई थी। सीधी तरह धक्का ही दे दे मुझे। अल्तमिश चारपाई के किनारे पर टिके बोला, दूसरी चारपाई खरीद लो। पेट खरीदने की औकात नहीं है तो। ये फरमाइश है या ताना? अल्तमिश ने इसके ऊपर से रजाई उतारते जमीन पर फेंक दी। अल्तमिश रजाई दो, मुझे सर्दी लग रही है। सिमर ने गुस्से से कहा। मुझे ओढ़ लें। वो शर्ट उतारते इस पर झुकते इसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया। सिमर खान ने इसके गर्दन पर नाखून गाड़े थे। अल्तमिश ने इसकी कलाइयां अपने शिकंजे में ली। सुबह कर नाखूनों को काटूंगा। वो जिमर के होंठ आजाद करते बेतरतीब सांसों से बोला, हाथ लगाओ ना जरा, जान से मार डालूंगी। सिमर की सांसें भी बेतरतीब भी। वो इसकी फिराक के जिप खिसकाते इसे जमीन का हिस्सा बना गया था। इसकी गहराइयों पर झुकते वो इसे अपने काबू कर चुका था। कुछ मिनटों बाद सिमर के चौड़े सीने में समाई थी। शर्म तो नहीं आती मुझे इस तरह से भूखा रखते हुए? अजाब है ऐसी औरतों पर। वो इसे खुद में समेटते मत्थम भर सरगोशियां कर रहा था। इस टाइम दर्ज देना ना भूलना। मदरसे में पार्ट टाइम जॉब कर ली है क्या? जिमर झुंझुलाए थे। सिमर का बुलंद ज़बान कहका गूंजा था। अब जवान बहन नहीं सुन रही? अल्लाह अल्लाह, आप तो हर जगह से धुआं निकालने में माहिर है। वो हंसते हुए इसके होठों से लिपट गया था। कमरा नरम गरम शिद्दतों से गूंजा था। कलफ्तें छट गई थी। वक्त मेहरबान होने लगी थी, मगर आखिर कब तक? चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।